So hello guys, welcome all of you. Today we are going to take a challenge of completing whole chemistry of NEET in 3 days with NCERT reading, which is very important as in the following years we have seen more questions coming from like assertion, reason, statement wise. So reading NCERT has become a very important challenge. So let's get started with our chapter. Hello alkane and hello arenes. First we are going to complete our organic chemistry, then we will take inorganic and then physical. Physical we are going to complete by writing formulas and by reading important statement wise some scientist discoveries and important statements. Okay, so let's get started. Hello alkane and hello arene. Hello means halogen, alkanes you all know the straight chain, arenes means aromatic ring. In this chapter we're going to study how if we add a halogen to a straight chain alkane and a aromatic ring. So let's start it. In a hydrocarbon, if we replace one hydrogen atom by halogen, it is called alkyl halide. And if that alkane is an aromatic ring and we replace one hydrogen atom of a aromatic ring, it is called haloarene. In case of alkane, the carbon atom from which we are replacing hydrogen, it is sp3 hybridized carbon atom. In case of haloarene, the carbon atom which we use to replace hydrogen atom is sp2 of aryl group. Many halogen containing organic compounds occur in nature and there are examples given here. The followings are the naturally occurring halogen containing compounds which can be used in medicine. The first one is chlorine containing antibiotic chloramphenicol produced by microorganism, which is very effective for the treatment of typhoid fever. So let's remember while reading. Okay, the first naturally occurring the first natural occurring haloalkane halogen containing compound, naturally occurring, it is not man made. The halogen which are used is chlorine containing antibiotic which is known as chloramphenicol produced by microorganism, which is very effective for the treatment of typhoid fever. टाइफाइड फीवर के लिए हम क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोराम्फेनिकॉल यूज़ करेंगे. फिर जैसे कि हमने बायो में पढ़ा है कि हमारा बॉडी आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन बनाता है, इसका नाम है थायरोक्सिन. द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज अ डिजीज कॉल गॉइटर. सिर्फ अगर हम किसी को गॉइटर उसके लिए मेडिसिन देंगे तो मेडिसिन में क्या होना चाहिए, आयोडीन, क्योंकि गॉइटर हुआ ही है आयोडीन की डेफिशिएंसी से. इसके लिए हम सिंथेटिक हैलोजन, इसमें हैलोजन क्या यूज़ होगा, आयोडीन. सिंथेटिक इन लैब में हम बनाएंगे. ठीक है, फिर इसमें सिंथेटिक जो हम बनाएंगे, जो मैनुअली बनाएंगे लैब में, उसमें से फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, क्लोरोक्यून, विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्लोरोक्यून यूज़ होगा. एंड क्लोरोक्यून इज़ नॉट नेचुरली अवेलेबल, इट इज़ मेड बाई अस. And second is halothane, which is used in anesthetic during surgery. It is also man-made. So there is one example of naturally occurring halogen containing compound which is chlorine containing chloramphenicol, which is used in the treatment of typhoid fever. Other two are man-made, which is first one is chloroquine, which is used in treatment of malaria, and second is halothane, which is used in the treatment of which is used in anesthetic during surgery. And certain fully fluorine containing compound. Fully fluorinated means all the hydrogen atoms are replaced by fluorine atoms. So these are used during surgeries as a potential blood substitutes. So in this unit we will study method of preparation of haloalkane, haloarene, their physical properties, their chemical properties, and their uses. Okay, let's move forward. The first one is classification. How do we classify haloalkane and haloarene? First we are going to classify haloalkane. If one hydrogen atom is replaced by halogen, it is monohaloalkane. 2 hydrogen replaced, dihaloalkane. 3 hydrogen replaced, trihaloalkane. In the case of haloarenes, if consider benzene ring, all the carbons of the benzene ring are sp2 hybridized. If one hydrogen atom is replaced by halogen, monohaloarene, 2 dihaloarene, 3 trihaloarene, and that's on. Compounds containing sp3x, let's include the classes. Okay, sp3 containing compounds हम स्टडी करते हैं सबसे पहले, that is alkyl halide या फिर haloalkane. इन alkyl halide जो halogen atom bonded होता है alkyl ग्रुप के लिए, वो एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके, 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके, कितना भी हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके बना सकते हैं. तो ये से जो सारे कंपाउंड्स बनेंगे हेलोअल्केन में, उनका एक जनरल फार्मूला होगा. जैसे होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1x. दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हम कैसा क्लासीफाई करेंगे, अगर जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला, अगर वो प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है वो सेकेंडरी कार्बन तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. अगर जिस कार्बन से निकाला वो टर्शरी कार्बन है तो टर्शरी हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड. अभी सेकंड ग्रुप क्या, अलाइलिक हैलाइड. अलाइलिक वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में एक कार्बन हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो, उस पर कोई ग्रुप लगे, इन दिस केस हैलोजन लगे, तो उसे हम अलाइलिक कार्बन बोलेंगे. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे CH2 जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, उस पर हैलोजन लगा, तो ये अलाइलिक कार्बन है.
इसमें रिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन नहीं, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, इसके बाजू में जो sp3 कार्बन उस पर हेलोजन लगा तो ये अलाइलिक है। अभी हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, उस पर एक कार्बन लगा होगा जो कि sp3 होगा, फिर उस पर हेलोजन लगा होगा, तो उसे हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बोलेंगे। देखो इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इस पे ये कार्बन लगा, ये sp3 है, इस पे हेलोजन लगा, ये बेंजीन रिंग है, इस पे कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है। ओके, ये कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका डिग्री टर्शरी, तो इस पे हेलोजन लगा हुआ है। इसका डिग्री क्या होगा, प्राइमरी, क्योंकि जो कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अभी जो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन x बॉन्ड, इसमें 2 ग्रुप्स है, एक विनाइलिक एक अराइलिक। विनाइलिक और अलाइलिक हम साथ में याद करेंगे। अलाइलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन sp3 कार्बन पे हेलोजन लगेगा, विनाइलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन पे ही हेलोजन लगेगा। एंड अराइलिक हम बेंजाइलिक हम साथ में याद रखेंगे। बेंजाइलिक में हमने क्या देखा, रिंग के बाहर एक sp3 कार्बन था, उसके ऊपर हेलोजन लगा था, लेकिन इन केस ऑफ अराइलिक रिंग के ऊपर ही हेलोजन लगेगा, उसे हम अराइलिक बोलेंगे। ओके, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, अगर स्ट्रेट चेन होता है तो हम एन लगाते हैं, अगर आइसो ग्रुप आइसो टाइप बनता है तो आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी कार्बन जिसे हम आइसो बोलते हैं, अगर और ये ब्यूटाइल जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है। इन दिस केस एन प्रोपाइल प्रोवाइड सो कॉमन नेम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसका IUPAC, ये सब तो आप कर ही लोगे, सब ईजी है। द डाई हेलो अल्केन्स हैव द सेम टाइप ऑफ हेलोजन, ठीक है। अगर देखिए जो एक अल्केन इसके ऊपर 2 हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, वो 2 तरीके से लग सकता है, या तो सेम ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगा रहेगा, फिर बाजू बाजू कार्बन पे 2 हेलोजन लगा होगा। अगर सेम कार्बन पे ही दोनों हेलोजन ग्रुप लगे उसको हम जेमिनल बोलेंगे, अगर बाजू बाजू वाले कार्बन पे हेलोजन लगा तो उसे हम विसिनल बोलेंगे। अगर जेमिनल हलाइड है तो उसका नेमिंग हम अल्का डाईन से करेंगे, और अगर विसिनल कार्बन पे लगा है मतलब बाजू बाजू कार्बन पे हेलोजन लगा है उसको हम अल्कीलीन डाईहलाइड बोलेंगे। ओके, अल्कीलीन डाईहलाइड। अब इसका कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये कार्बन कार्बन एक इस वाले कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये जेमिनल हुआ कि जेमिनल हुआ क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं हेलोजन ग्रुप। इसे हम कैसे करें, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अल्काइली डाईन फॉर जेमिनल का यूज़ करेंगे अल्काइली डाईन। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो इथाइलिडीन क्लोराइड, ये बाजू बाजू कार्बन है विसिनल डाईहलाइड, उसके लिए हम अल्किलीन यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या यूज़ होगा, इथाइलिन डाईक्लोराइड। ओके, ये आ सकता है, यानी ये कॉमन नेम है सारे का, और ये IUPAC नेम एक बार लर्न कर लेना। फिर स्ट्रक्चर हमें बनाने के लिए आएगा तो ये बहुत ही इजी है, बना सकते हैं हम। इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आएगा, यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। इसका स्ट्रक्चर बना के इसका IUPAC नेम दिया हुआ इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अभी हम नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके कंपैरिजन में कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और हेलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक पोलर बॉन्ड बनाएंगे। जैसे हेलोजन ग्रुप में जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे तो उसका साइज़ बढ़ता है, हेलोजन का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो कार्बन और उस हेलोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, कार्बन के न्यूक्लियस से लेकर आयोडीन के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस। अगर आयोडीन का साइज़ बढ़ रहा है, किसी हेलोजन ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है, मतलब उसका न्यूक्लियस कार्बन से दूर जा रहा है मतलब लेंथ बढ़ रहा है, तो उन लोगों का बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, ठीक है। अभी हम अल्काइल हैलाइड का इसमें देखो दिया है बॉन्ड लेंथ, देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देना, अगर कोई बॉन्ड अगर ज़्यादा बड़ा है तो वो वीक होगा तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे टूट जाएगा। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसलिए अगर बॉन्ड लेंथ, अगर हम एक रिलेशन बनाए तो बॉन्ड लेंथ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बढ़ा तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम। और डाइपोल मोमेंट एक एक्सेप्शन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको ज़रूर याद करना, ये PYQ में आया हुआ भी है। इसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट मिथाइल क्लोराइड का होता है, फिर मिथाइल फ्लोराइड का, फिर मिथाइल ब्रोमाइड का, फिर मिथाइल आयोडाइड का। ये ऑर्डर हमें याद रखना है, फर्स्ट मिथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल फ्लोराइड, देन मिथाइल ब्रोमाइड, देन मिथाइल आयोडाइड। ये किसका ऑर्डर है, डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। अब हम मेथड प्रिपरेशन फटाफट कर लेते हैं कि हेलो एल्केन्स हम कौन से तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये हम पहला जो हेलो एल्केन बनाएंगे अल्कोहल का एज अ रिएक्टेंट यूज़ करके बनाएंगे। सारे अल्कोहल देखो यहाँ पे हैं, तो पहले केस में हम अल्कोहल में HCl + ZnCl2 डालेंगे। ये रिएजेंट देखिए किसी नाम याद आया, कोई इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ल्यूकास रिएजेंट इसे बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड HCl + ZnCl2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट। इसमें क्या होता है, जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है वो उसमें अगर हम HCl ZnCl2 डालेंगे तो विदिन सेकंड वो रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बना देगा। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रहेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, सॉरी अल्कोहल रिएक्टेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो कुछ मिनट में बनाएगा, और प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसमें देखो नीचे स्टेटमेंट भी दिया है कि
इसमें हम ज़रा सा जैसे कि जो ये टर्शरी रहेगा तो उसको हम ऐसे शेक करके ही बना सकते हैं। ज़रा शेक करेंगे तो अपना अल्काइल हाइड बन जाएगा। सेकेंडरी के लिए मिनट लगेगा, सेकेंडरी के लिए मिनट लगेगा, प्राइमरी के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर दूसरा देखते हैं, अगर अल्कोहल में हम NaBr डालेंगे या फिर हम लोग NaBrH+ इन एसिडिक मीडियम में भी हम लोग दे सकते हैं, तो उसमें अल्काइल हाइड बन सकता है। फिर तीसरे में अगर अल्कोहल में PX3 डाल दिया, PCl5 डाल दिया तो अल्काइल हाइड बन सकता है। अगर अल्कोहल में रेड फॉस्फोरस X2 और हमारा जो यहाँ पे हेलोजन है ब्रोमीन आयोडीन, तो उस केस में अल्काइल हाइड बन सकता है। अगर अल्कोहल में हमने SOCl2 डाल दिया, एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, डाल्टन्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्यों? इसमें जो इसका बाई प्रोडक्ट बनता है वो गैशियस फॉर्म में रहता है, वो इवापोरेट हो जाता है। तो अल्कोहल में हम SOCl2 डालेंगे तो हमें अल्काइल हाइड मिलेगा। तो ये हमारे पास 6 रिएक्शन है अल्कोहल से बनाने के लिए। पहले के केस में ल्यूकास रिएजेंट यूज़ करेंगे, कॉन्सेंट्रेट HCl + ZnCl2। सेकंड में NaBrH2SO4 यूज़ करेंगे, थर्ड में PX3, फोर्थ में PCl5, फिफ्थ में रेड फॉस्फोरस X2 यूज़ करेंगे, इसमें हेलोजन ब्रोमीन आयोडीन होगा, और सिक्स में हम SOCl2 जो कि डाल्टन्स रिएक्शन उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। अभी सेकंड मेथड क्या हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। जब भी हाइड्रोकार्बन मोस्टली आता है तो हम उसमें फ्री रेडिकल हेलोजनेशन मेथड यूज़ करते हैं। फ्री रेडिकल हेलोजनेशन मेथड में क्या होता है? फ्री रेडिकल हेलोजनेशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन करेंगे। देखो यहाँ पे कहीं भी फ्लोरीनेशन नहीं यूज़ हुआ है, तो याद रखना है कि फ्लोरीनेशन के लिए अलग रिएक्शन होता है। इसमें हम क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन यूज़ करेंगे। फ्री रेडिकल में भी हमने क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन यूज़ किया है। जब भी फ्री रेडिकल, या इसका एक ट्रिक है, जब भी हमने सनलाइट दिखा या फिर यूवी लाइट दिखा तो समझ जाने का इसमें हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही जाना या फिर जा सकते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मेजर प्रोडक्ट हम किससे डिसाइड करेंगे? फ्री रेडिकल में जो मेजर प्रोडक्ट हो टर्शरी, सेकेंडरी, पहले टर्शरी का ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। देखो ये वाला प्राइमरी कार्बन से अटैच हेलोजन, ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच हेलोजन। इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये सेकेंडरी कार्बन वाला होगा। ओके, इसमें बनेगा ऐसा नहीं कि प्राइमरी वाला नहीं बनेगा, प्राइमरी वाला भी बनेगा, लेकिन मेजर जब हमें सेपरेट करना होगा तो हमें प्राइमरी का कम मिलेगा क्वांटिटी और सेकेंडरी का ज़्यादा मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट का ज़्यादा मिलेगा। अभी तीसरा हम अल्कीन से बना सकते हैं। अल्कीन से मोस्टली हम एडिशन रिएक्शन से बनाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ पे H और X ऐड करेंगे तो हमें हेलोजन अल्काइल हाइड मिल जाएगा। तो जब भी हम एडिशन रिएक्शन करेंगे अल्काइल हाइड के थ्रू, हम मार्कोनिकॉफ्स रूल यूज करेंगे। मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या होता है, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन आइटम होता है, हेलोजन ग्रुप उस कार्बन के पास जाएगा, तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर भी बनेगा, प्राइमरी कार्बन के पास भी जाएगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। इसमें देखो इस डबल कार्बन डबल बॉन्ड में किसके पास कम हाइड्रोजन है? ये सेकेंडरी कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो हमारा हेलोजन ये सेकेंडरी कार्बन के पास जाएगा, तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी सेकंड मेथड हम अल्कीन में क्या यूज़ कर सकते हैं? हेलोजन का एडिशन। हमने इसमें HX का एडिशन किया था, इसमें हमें सिर्फ हेलोजन का एडिशन करेंगे। उसके लिए रीजेंट क्या यूज़ होगा? ब्रोमीन + CCl4 यूज़ होगा। इसमें ये बॉन्ड को तोड़ के हम ब्रोमीन ऐड करेंगे और ये विसिनल ऐड होगा, जेमिनल नहीं, विसिनल ऐड होगा। ओके, विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। एक ही कार्बन पे हमें नहीं ऐड करना, पहला बॉन्ड टूटेगा तो फर्स्ट कार्बन पे आएगा और सेकंड कार्बन पे आएगा। एंड ये भी क्वेश्चन दिया है हमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू करना है मोनोक्लोरिनेशन, तो हमें इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाना है। देखो ये सेकेंडरी है तो इस पर एक फ्री रेडिकल बनाया गया, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। इसके ऊपर बन सकता है क्योंकि इसके बाजू वाला दोनों कार्बन अलग है, तो इस पर बन सकता है। इसमें हमें 4 टाइप में प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड से भी अल्काइल हाइड बना सकते हैं। देखो हमने पहले अल्कोहल से बनाया, फिर ये देखिए पहले हमने अल्कोहल से बनाया, फिर अल्कीन यूज़ करके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ किया, फिर अल्कीन यूज़ करके उसमें एडिशन रिएक्शन किया, उसमें पहले HX से एडिशन कराया, फिर हेलोजन से एडिशन कराया, फिर हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड यूज़ करेंगे। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? अल्काइल हैलाइड यूज़ करके हमें अपना जो अल्काइल बनाना है वो बनाएंगे। इसमें रिएक्टेंट भी अल्काइल हैलाइड है और प्रोडक्ट भी अल्काइल हैलाइड है। इसमें हम 2 मेथड यूज़ करेंगे, एक फिंकलस्टीन एंड सेकेंड रहेगा हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। पहले फिंकलस्टीन देखते हैं। फिंकलस्टीन में हम NaI यूज़ करेंगे, NaI, ठीक है। इसमें हम RX अल्काइल ब्रोमाइड से हम अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे, ठीक है। और इसमें ली चार्टलिस प्रिंसिपल अगर हम लगाए तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में जो NaCl, देखिए ये बॉन्ड बीच का बॉन्ड टूट के X जाएगा Na के साथ और I आके यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो NaX बनेगा। तो अगर क्लोरीन हुआ तो NaCl बनेगा, अगर हेलोजन ब्रोमीन हुआ तो NaBr बनेगा। तो जो NaCl NaBr प्रोडक्ट में बनेगा उसको ड्राई एसीटोन जो कि हमारा मीडियम है उसके साथ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो ली चार्टलिस प्रिंसिपल के हिसाब से जहाँ पे अमाउंट कम होगा रिएक्शन उसी की तरफ बढ़ेगा, तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ेगा। ओके, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोरामाइड इज बेस्ट अकम्प्लिश। मैंने बोला था ना फ्लोरीन के लिए अलग मेथड यूज़ होगा, इसलिए हम फ्लोरीन अगर हमें अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो हम स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज़ करेंगे। स्वार्ट्ज में क्या यूज़ होता है? SbF3, AgF, COF2, Hg2F2, ठीक है।
इसमें भी हमारा रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड है और प्रोडक्ट भी अल्काइल हैलाइड में हम अल्काइल हैलाइड से अल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और हम स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो अरीना बेंजीन रिंग में या फिर टॉल्विन या फिर बेंजीन डेरिवेटिव में या फिर एरोमेटिक रिंग डेरिवेटिव में हम जो हेलोजन ऐड करके बनाएंगे प्रोडक्ट वो देखेंगे हम। पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोकार्बन लगा होगा, उस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके, इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उस रिएजेंट को यूज़ करके हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें ये याद करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कौन सा हम इजीली बना सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कौन सा दो ज़्यादा अच्छे से बन सकता है, अराइल क्लोराइड और अराइल ब्रोमाइड। इसमें हमने टॉल्विन यूज़ किया, टॉल्विन हमने हेलोजन डाला है, तो हेलोजन हमारा क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम एक लिविस एसिड कैटलीज यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट, लिविस एसिड कैटलीज यूज़ करेंगे जो कि है Fe डार्क, जो Fe आयरन के फॉर्म में हो सकता है या Fe3+ के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो X2 यूज़ किया, Fe डार्क, जब भी Fe डार्क आया तो हेलोजन रिंग के ऊपर ऐड होगा। अगर हमने यहाँ पे UV लाइट यूज़ कर लिया तो हेलोजन हमारे मिथाइल के साथ अटैच होगा, ये याद रखना, ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन आता है। इसमें हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा। तो इसमें कौन सा मेजर कौन सा माना, कैसे डिसाइड करने का। ऑर्थो पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेट, एज इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्थो और पैरा के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि इसके लिए हम उसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, HNO3 एंड HiO4, जो कि HI को ऑक्सीडाइज करके आयोडेशन में हेल्प करता है। फ्लोरो कंपाउंड्स ये मेथड से हम नहीं बना सकते क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। अब दूसरा हम मेथड यूज़ करेंगे अमाइंस। अमाइंस से हम कैसे अपना हेलोरिन्स बनाएंगे। अमाइंस में हम सैंडमेयर रिएक्शन यूज़ करेंगे। कौन सा रिएक्शन यूज़ करेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होगा वो कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें हम यूज़ करेंगे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी नहीं, इसमें हम यूज़ करेंगे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ये पूछ सकते हैं कि सैंडमेयर रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, जो कि डिजॉल्व या फिर सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में इसको ट्रीट किया जाएगा सोडियम नाइट्राइड NaNO2 में और HX से। तो 273 to 278 केल्विन पे हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमें बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा। उसी बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट को हमने Cu2X2 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें अपना अराइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक और मेथड है, हमने बेंजीन डाइअज़ोनियम ग्रुप को, हमें अगर आयोडीन चाहिए, ठीक है, हेलोजन हमें आयोडीन चाहिए अराइल के ऊपर, तो हम उसको, हमें क्यूप्रस हैलाइड डालने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली KI डाल के डायरेक्टली शेक करेंगे KI डाल के, तो हमें हमारा अराइल हैलाइड मिल जाएगा। हैलाइड इसमें क्या है, आयोडीन। सिर्फ आयोडीन के लिए हम KI करके शेक डालेंगे। अगर ब्रोमीन या क्लोरीन डालना है तो CuX2 यूज़ करेंगे। ये देखिए एक सॉल्व एग्जांपल, इसमें ये बॉन्ड HBr के साथ रिएक्ट करे तो इसमें कौन सा अल्कीन है और HBr है, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H लगेगा, ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ पे क्यों, सेकेंडरी कार्बन है। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। पेरोक्साइड, जब भी पेरोक्साइड दिखे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाने का। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हेलोजन उस कार्बन एटम पे जाएगा जिस कार्बन एटम पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा। देखिए यहाँ पे आंसर दिए हैं एंड सॉल्व ऑल दिस। ये कौन सा रिएक्शन है, ये डाजन्स रिएक्शन है, SOCl2। तो इसमें ये OH रिमूव होके इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ये ब्रोमीन, हीट और UV लाइट, देखो मैंने बोला था UV लाइट दिखा तो हेलोजन ऐड होगा कार्बन के ऊपर, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर हेलोजन ऐड होगा। HCl दिख रहा है और हीट, तो HCl हीट दिखा तो ये OH हट के यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। यहाँ पे CH3HI, तो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, चाहिए तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होकर बॉन्ड टूट के यहाँ पे हेलोजन I लग जाएगा। ये NaBr निकलेगा, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। ये ब्रोमीन, हीट और UV लाइट है, तो इसमें अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होके यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। या आप आंसर पीछे चेक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ओके। अल्कालाइड जो होते हैं अगर प्योर फॉर्म में रहेंगे तो कलरलेस होंगे, अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड हुए तो वो कलर डेवलप करेंगे अगर हम एक्सपोज करेंगे लाइट से। तो अगर बहुत मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं उनका स्वीट स्मेल, ये इंपॉर्टेंट है। स्वीट स्मेल, अगर ऐसा कंपाउंड देंगे, कंपाउंड X है स्वीट स्मेल, तो आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड, तो हमें समझ जाना है कि वो स्वीट स्मेल वाला कंपाउंड एक अल्काइल हैलाइड है, ओके। अभी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ये याद रखना है कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स गैसेज होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनसे ऊपर जो हायर मेंबर्स होंगे वो सॉलिड होंगे या फिर लिक्विड होंगे,
एज वी हैव ऑलरेडी लर्न मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। क्यों पोलर की हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इससे हमारे पोलर कंपाउंड मिलेगा। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जो उसका पेरेंट ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। हमने हाइड्रोजन बनाया था हाइड्रोजन एटम को निकाल के, जो उसका ओरिजिनल होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, क्योंकि हमने जो कंबाइन करके हाइड्रोजन बनाया तो हाइड्रोजन का मास तो ज़्यादा ही होगा ना हाइड्रोजन का, जिसको हमने रिप्लेस किया, तो उसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि डाइपोल या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे, वो स्ट्रॉन्गर होंगे इन द केस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। दैट इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब ओरिजिनल एक हाइड्रोकार्बन लो और उसका अल्काइल हैलाइड लो, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमें किसका मिलेगा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, हमें उस अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल्स गेट बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। मोर इलेक्ट्रॉन कैसे आया, जो हाइड्रोजन ऐड किया उससे आया। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कौन सा ऑर्डर में, मॉलिक्यूलर मास देखो फिर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो देखो इसमें आर अल्काइल सब में सेम है, इसमें आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, तो आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है, ठीक है। दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। ये ग्राफ देखो, ये गैसेज है, मिथाइल हैलोजन, ये इथाइल हैलोजन, ये प्रोपाइल हैलोजन। देखो जो लोअर होंगे वो गैस होंगे, जो ये हमारा देखो रेड वाला क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, सॉरी गैस नहीं है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। इनका जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। देखो इसका इतना है, इसका इतना, इसका इतना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल में कैसे यूज़ करेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगा। अगर किसी में ब्रांचिंग ज़्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें देखो 4 कार्बन एटम, इसमें भी 4 कार्बन एटम, इसमें भी 4 आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स दिया सबसे पहले चेक करने का कि कार्बन एटम सेम है कि नहीं, अगर कार्बन एटम सेम है तभी आइसोमर्स वो हो सकते हैं। इन सब में 4 कार्बन एटम है। ये देखो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में है, इसमें, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। फिर इसमें ब्रांचिंग है, ये तो एकदम स्ट्रेट चेन, इसमें ब्रांच मतलब सेकेंडरी पे है, ये प्राइमरी में, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम। हाउएवर द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट आर एज कम्पेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। इसमें जो पैरा आइसोमर्स बनेगा उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू उनके ऑर्थो और उनका मेटा आइसोमर्स। ओके, ये क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू सिमेट्री। जो पैरा आइसोमर्स होते हैं वो ज़्यादा सिमेट्रिक होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स, ठीक है। इसमें देखो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, पैरा, क्योंकि इसमें सिमेट्री ज़्यादा होता है। फिर किसका होगा, ऑर्थो का, फिर मेटा का, तो इसमें हम ऐसा याद रख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, POM फॉर्म। एंड बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑर्थो का, फिर पैरा का, फिर मेटा का। इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट में हम याद करेंगे OPM, और मेल्टिंग पॉइंट में हम याद करेंगे POM, पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। अभी डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। इसमें हमें मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा किसका, इसका है। इसमें 4 क्लोरीन लगा, इसमें 3 क्लोरीन लगा, इसमें 2 क्लोरीन रखा, तो डेंसिटी भी इसका ज़्यादा, पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। सॉल्युबिलिटी देखते थे, हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा स्टेटमेंट हमें दे सकते थे, हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और नन ऑफ दिस। इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हेलो एल्केन इन वाटर, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा, किसी भी चीज़ को हमें वाटर में डिजॉल्व करना है तो सबसे पहले उसका बॉन्ड तोड़ के उस वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना होगा। जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उतना अच्छा डिजॉल्व होगा। तो सबसे पहले बॉन्ड तोड़ के जो एनर्जी रिलीज होगा। In order to dissolve the haloalkanes in water, energy is required to overcome the attraction between haloalkane molecules and break the hydrogen bond between water molecules. जो water molecules के बीच में जो bond बना है उसे तोड़ेंगे तभी तो वो molecules dissolve होगा। तो उस वैसा करने पे जो energy release होता है वो बहुत ही कम release होता है। When new attractions are set up between the haloalkane and water molecule, as they are not as strong as original hydrogen, का original hydrogen bond बनेगा water के साथ उतना strong नहीं बनेगा, उससे कम strong, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोन के साथ बनता है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ। However, alkanes tend to dissolve in organics. अगर हम इसकी जगह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करें तो हेलो अल्केन्स उसमें डिजॉल्व होंगे, क्योंकि जो न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बनेगा हेलो अल्केन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू हेलो अल्केन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा वाटर में होगी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगी। हेलो अल्केन, ये प्रिंसिपल एक सुना होगा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, उस हिसाब से हेलो अल्केन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगी एज कम्पेयर टू वाटर। अभी इसका हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। हेलो अल्केन कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन, हेलो अल्केन 3 टाइप का केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स। पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ यूज़ होंगे। न्यूक्लियोफिलिक कौन होता है, न्यूक्लियस लविंग, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस लविंग होंगे। वो इलेक्ट्रॉन देखो इधर दिया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं। Therefore they attack at that part of the substrate molecule which is electron deficient। तो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। दिस रिएक्शन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस, सब्स्टिट्यूशन दिया मतलब रिप्लेसमेंट होगा। न्यूक्लियोफाइल एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल को, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ आ सकता है एग्जाम में। द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोअल्केन्स आर सबस्ट्रेट इन दिस रिएक्शन। तो इसमें सबस्ट्रेट क्या है, हेलोअल्केन। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स करता है हेलोअल्केन के साथ, जो जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और टेक्स पर हेलोजन एटम जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो लीव करेगा, उसकी जगह हमारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल एटम आएगा। तो देखो इसमें दिया है अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हेलोजन एटम आर कॉल लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज हैलाइड आयन। एक्स माइनस के फॉर्म में वो निकल जाएगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके लग जाएगा। तो यहाँ पे एक्स गया, न्यूक्लियोफाइल आया, तो इसमें रिप्लेसमेंट हुआ। और किसका रिप्लेसमेंट हुआ, न्यूक्लियोफाइल के, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये हमें याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन एटम हमारा sp3 कार्बन से अटैच होता है और अराइल हैलाइड में हमारा हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। ये हमें ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स दिया है। रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे तो उस रिएजेंट में कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज़ आएगा और सब्स्टिट्यूशन होकर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोई बेस यूज़ करेंगे NaOH KOH, तो हमें इसका न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH। हमेशा याद रखना न्यूक्लियोफाइल ज़्यादातर माइनस वाला जो स्पीशीज़ होगा वही होगा, तो इसका हमें प्रोडक्ट बनेगा एक अल्कोहल बनेगा। अगर हमने वाटर यूज़ किया तो हमारा न्यूक्लियोफाइल वाटर होगा, इसमें भी हमें अल्कोहल मिलेगा। अगर हमने NaOR यूज़ किया तो हमें OR माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हमें ईथर मिलेगा। Na यूज़ किया तो ऑब्वियसली इसमें हेलोजन हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा I माइनस, तो हमें अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। अगर हमने अमोनिया यूज़ किया एज अ रिएजेंट तो हमें हमारा न्यूक्लियोफाइल अमोनिया होगा, तो हमें प्राइमरी अमाइन मिलेगा। अगर प्राइमरी अमाइन यूज़ किया तो सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। सेकेंडरी अमाइन यूज़ किया तो हमें टर्शरी अमाइन मिलेगा। अगर ये दोनों को साथ में याद रखना है, ये दोनों रिएक्शन। अगर हमने KCN यूज़ किया तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अगर AgCN बनेगा, AgCN यूज़ किया तो AgCN न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। KCN में CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, AgCN में AgCN न्यूक्लियोफाइल है। तो KCN में हमारा C जाके R पे अटैच होगा। डोनेटिंग ग्रुप कौन है इसमें, कार्बन। और AgCN में उल्टा कर देने का, इसमें हमारा डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन है। ओके, इसमें आइसोसाइनाइड बनेगा और इसमें साइनाइड बनेगा। KCN में साइनाइड बनेगा, AgCN में आइसोसाइनाइड बनेगा। KCN में डोनेटिंग ग्रुप कार्बन है, AgCN में डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन है। अगर हमने ये दोनों भी साथ में याद करने का, KNO2 और AgNO2। KNO2 यूज़ किया तो ONO हमारा न्यूक्लियोफाइल है। AgNO2 यूज़ किया तो AgONO हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो हमारा इसमें KNO2 में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, रोनो। KNO2 में ONO यूज़ करके रोनो बनेगा, RONA। और AgNO2 में NO2 बनेगा, RONO2। इसमें अल्काइल नाइट्राइड बनेगा KNO2 में, और AgNO2 में नाइट्रो अल्केन बनेगा। अगर सिल्वर एसीटेट यूज़ किया तो RCO माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है और हमारा प्रोडक्ट बनेगा ईस्टर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया तो ऑब्वियसली हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें अल्केन मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। अगर R+M कोई मेटल अल्केन के साथ यूज़ किया तो हमारा जो R ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा और हमें अल्केन मिलेगा। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हमने दो ग्रुप देखा था, एक CN वाला और NO2 वाला, जो साथ में हमने पढ़ा था। इन ग्रुप को हम एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। एम्बिडेंट मतलब कि देखो साइनाइड और नाइट्राइल में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होंगे। इसमें KCN में कार्बन था सेंटर और AgCN में N हमारा नाइट्रोजन था। KNO2 में ऑक्सीजन था, AgNO2 में N था। Group like cyanide and nitride possess two nucleophilic centers and it is called ambident ligands. Actually, cyanide group is a hybrid of two contributing structure and therefore can act as nucleophile in two groups. पहले C कार्बन डोनेट करेगा, उसके बाद NC। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसका रीज़न दिया है पूरा। Haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanide as main product, while AgCN जो isocyanide बनाता है स्टील प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? KCN प्रीडोमिनेटली आयोनिक होता है और AgCN हमारा कोवेलेंट होता है। अगर आयोनिक है तो K+CN माइनस में टूटेगा और ये जाके अटैच होगा अल्केन पे, और AgCN में ये कोवेलेंट है तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो हमारा इस तरफ से नाइट्रोजन एटम फ्री होगा, तो ये नाइट्रोजन एटम जाके अटैच होगा उस मेन रिएक्टेंट पे।
उसी तरीके से हमारा नाइट्राइड्स का भी होता है। कार्बन एटम रिजल्टिंग सिमिलर नाइट्राइड आयन ऑल्सो रिप्रेजेंट एज एम्बिडेंट, वहाँ पे ONO यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। पहला सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, जिसे हम SN2 बोलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू इल मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयन। जैसे कि हमने यहाँ पे एक अल्काइल क्लोराइड यूज़ किया और हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH है। सबसे पहले यहाँ पे S है, ये हमारा SN2 रिएक्शन है, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू इल मिथेनॉल, इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या है, मिथेनॉल बनेगा, क्लोराइड आयन रिलीज होगा, फॉलोज अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, इसके लिए हम SN2 बोलेंगे। द रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो इसका SN2 का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और SN2, मतलब SN2 जो हमारा है वो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और जो हमारा SN1 होता है वो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। SN2 1 स्टेप रिएक्शन होता है, SN1 2 स्टेप रिएक्शन, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये एक स्ट्रक्चर दिया, सॉलिड वेज रिप्रेजेंट द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, डैश लाइन गोइंग इनटू द पेपर एंड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द बॉन्ड इन द पेपर। देखो ये हमारे बॉन्ड फॉर्म में ये पूरा एक्सप्लेन किया है उसका मैकेनिज्म। It depicts a bimolecular nucleophilic substitution reaction. The incoming nucleophile interacts with alkyl halide causing the carbon halide bond to break and a new bond is formed between carbon attacking nucleophile. इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनेगा, दिस टू प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब यहाँ एक तरफ से OH अटैच होगा, एक तरफ से X हमारा हेलोजन जो कि इसमें क्लोरीन है वो निकलेगा, ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है। इसके लिए इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता है। SN2 में हमें इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्टेप का रिएक्शन है, और जो SN1 होता है वो 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, तो उसमें हमें इंटरमीडिएट मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये SN2 सिंगल स्टेप होता है और इसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है। एज अ रिएक्शन प्रोग्रेस एंड द बॉन्ड बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम स्टार्ट्स फॉर्मिंग, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड द लिविंग ग्रुप वीकन्स। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन अप्रोच करेगा जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और हेलोजन और कार्बन के बॉन्ड का बीच बॉन्ड वीक होने लगेगा। एज दिस हैपेंस द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द सबस्टेंस स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जो बाकी के 3 हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है वो अवे होंगे। In transition state, all the 3 carbon hydrogen bond are in the same plane and the attacking and nucleophile are partially attached to the carbon. As the attacking nucleophile approaches closer to the carbon, carbon hydrogen bonds still keep on moving in the same direction till the attacking nucleophile attaches to the carbon and leaving group leaves the carbon. As a result, configuration is inverted. Inverted क्यों? एक तरफ से halogen निकला, दूसरी तरफ से हमारा हाइड्रोक्साइड अटैच हुआ, तो जिस तरफ से निकला उस तरफ तो अटैच नहीं हुआ ना, उसके अपोजिट साइड अटैच हुआ, तो ये इन्वर्स साइड पर अटैच हुआ, जैसे हम इसके लिए इन्वर्जन, SN2 में इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इन द ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू इनकमिंग। हम ट्रांजिशन स्टेट में देखेंगे तो कार्बन एटम 5 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है और लिविंग ग्रुप तुरंत निकला हुआ नहीं रहता, निकलने वाला रहता है। सच स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होगा और cannot be isolated. Thus in the transition state carbon is simultaneously bonded to 5 atoms. ये इंपॉर्टेंट है। देखो उसका मिरर इमेज दिया है, स्ट्रक्चर दिया है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशन। ये आ सकता है सर डेफिनेशन करके इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन इज कॉल्ड इट्स कॉन्फिगरेशन। दिस आर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द सेम कंपाउंड। देखो ए का मिरर इमेज भी है, किस तरीके से वो अलग है वो हमें बस इसमें देखना है। Since this reaction requires the approach of the nucleophile to the carbon-bearing living group, the presence of bulky substituent on or near the carbon atom have a dramatic inhibiting effect। देखिए इसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अप्रोच करता है, हालाइड निकलता है। अगर कार्बन पे बल्कि ग्रुप्स लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्राउडेड प्लेस पे कैसे थोड़ा उसको मुश्किल होगा आने में, अटैक करने में। इसके लिए जितना कम बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा अच्छे से न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैच होगा, तो रिएक्टिविटी टर्शरी के लिए कम हो जाएगी, टर्शरी हालाइड के लिए। सेकेंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसके लिए होगी? प्राइमरी के लिए। ऑफ द सिंपल अल्कालाइड मिथाइल हाइलाइड आर मोस्ट रिएक्टिव। तो इसका ऑर्डर हम जनरलाइज कर सकते हैं, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री अल्कालाइड, फिर टर्शरी अल्काइल हाइलाइड। टर्शरी हाइलाइड ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज बल्कि ग्रुप्स हिंडर द अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच करेगा तो बल्कि ग्रुप्स को थोड़ा इनिबिट करेंगे, रिपल्जन देंगे। इसका देखो यहाँ पे ऑर्डर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी हाइलाइट, फिर सेकेंडरी हाइलाइट, फिर टर्शरी हाइलाइट, इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अभी सेकंड हम SN1 बोलेंगे। तो मैंने बोला था SN1 के लिए कौन सा पॉइंट बोला था, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होता है। SN2 में 1 स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता। SN1 में इंटरमीडिएट होता है। SN2 न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, SN1 न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसका जो रिएक्टिविटी आगे दिया होगा, SN1 रिएक्शन है जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और SN2 पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में हम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है और SN2 पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया।
The reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide yields tertiary butyl alcohol and follows the first order kinetics. और SN2 में क्या दिया था, देखो ये फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और SN1 क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट. एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा इसमें, ठीक है. ये न्यूक्लियोफाइलिक कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता. इट अकर्स इन 2 स्टेप्स. SN1 2 स्टेप में होता है. स्टेप 1 में क्या होगा, पोलराइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वो क्लीवेज वो टूटेगा, स्लो क्लीवेज दिखाएगा और हमें कार्बोकटाइन मिलेगा और एक ब्रोमाइड आयन मिलेगा. इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा. हाइड्रोजन निकलने के बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है. इसके लिए 2 स्टेप रिएक्शन होता है. ये स्टेप 1 स्लो स्टेप होगा, और हमें पता है कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लोएस्ट और रिवर्सिबल स्टेप है. इट इन्वॉल्व्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, इसलिए एनर्जी रिलीज होगा थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट. हमने इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो हमारा हलाइड जो होगा वो सॉल्वेट होगा किसके साथ, प्रोटॉन के साथ. जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रोटॉन्स निकलेंगे वो हलाइड के साथ कंबाइन हो जाएंगे. सिंस द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, ये हमें पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, हमारा स्लोएस्ट स्टेप. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइलाइड एंड नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. देखो मैंने बोला था कि SN1 में न्यूक्लियोफाइल, इसमें न्यूक्लियोफाइल का यूज हाइड्रोक्साइड आयन. SN1 में हमारा जो SN1 रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. The rate of reaction depends only on the concentration of the alkyl halide and not on the concentration of the hydroxide ion. और SN2 में हमारा जो रिएक्शन होता रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, SN1 में डिपेंड नहीं करता है. For the greater will be the rate of the reaction. For the greater the stability of the carbocation, greater will be the ease of formation of alkyl halide. तो हमने SN2 में क्या ऑर्डर पढ़ा था, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी हाइलाइट, फिर टर्शरी हाइलाइट. तो SN1 में उसका उल्टा होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकटाइन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो कार्बोकटाइन का डिग्री टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. We can sum up the order of reactivity of alkyl towards SN1 and SN2. देखो यहाँ पे दिया है SN2 के लिए प्राइमरी सबसे ज़्यादा होगा और SN1 के लिए टर्शरी का रेट सबसे ज़्यादा होगा. फॉर द सेम रिएक्शन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1. देखो अगर हमें अलाइलिक और बेंजाइलिक हलाइड दिया और पूछा किसका SN1 में ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा कि SN2 में, ये ज़्यादा होगा SN1 में. SN1 में क्यों, जो कार्बोकटाइन बनेगा वो स्टेबल होगा अलाइलिक बेंजाइलिक में. तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो SN1 के थ्रू जाएंगे हम. देखो यहाँ पे देते कार्बोकटाइन थर्स फॉर्म स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस. For a given alkyl group, the reaction of the halide RX follows the same order in both the mechanism. चाहो SN1 हो या फिर SN2 हो, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा वो ये दिया है. RI के सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप की एबिलिटी कौन जल्दी से लीव करेगा, तो RI का सबसे ज़्यादा होगा, फिर RBR, फिर RCl, फिर RF. ये देखो क्वेश्चन दिया है किसमें SN2 फास्टर होगा. तो SN2 का ऑर्डर क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा. इसमें देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इसमें इसका ज़्यादा होगा. इन दोनों में किसका होगा, इसमें देखो डिग्री सेम है तो इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखेंगे तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा होगा. देखो इसमें आंसर दिया हुआ है. अभी हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे इफेक्ट करती है वो हम पढ़ेंगे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी नीड टू लर्न सम बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल एंड नोटेशन, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हुआ, कायरलिटी हुआ, रिटेंशन हुआ, इन्वर्जन हुआ, रेसिमाइजेशन हुआ. अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते. प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म इज रोटेटेड व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड. एक इसमें निकोल प्रिज्म इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हम यूज़ करेंगे. अगर एक लाइट निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया और जो हमने लिक्विड है उसका प्लेन रोटेट हुआ तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरीमीटर. पोलैरीमीटर यूज़ करेंगे हम उसका एंगल मेजर करने के लिए, कितने एंगल से वो लाइट रोटेट हुआ. इफ द देखो इसमें हम एक सोल्यूशन लेंगे, यहाँ पे एक सोल्यूशन लेंगे और यहाँ पे हमारा निकोल प्रिज्म होगा, ठीक है. इधर से हम लाइट पास करेंगे सोल्यूशन में से, तो निकोल प्रिज्म से अगर वो डिवेट हुआ तो वो जो हमारा कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ. अगर ये एंगल से डिवेट नहीं हुआ तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ. इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट, क्लॉकवाइज में हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज में हुआ तो लीवो रोटेटरी. या फिर से हम एल फॉर्म बोलेंगे और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम पॉजिटिव या फिर डी फॉर्म बोलेंगे. प्लस माइनस यूज़ होगा तो ये आइसोमर होगा, तो हमारा ये डेक्स्ट्रो और लीवो एक दूसरे को क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए. और ये फिनोमिना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे. मॉलिक्यूलर असिमेट्री, कायरलिटी और एनांशियमस पढ़ेंगे. द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुईस पास्चर दैट क्रिस्टल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेजेस laid the foundation of modern stereochemistry. He demonstrated that aqueous solution of both types of crystals showed optical rotation equal in magnitude for solution of given equal concentration but in opposite direction. ठीक है.
He believed that this difference in optical activity was associated with the three-dimensional arrangement of atom in the molecule's configuration of two types of crystals. Dutch scientist J. Van 't Hoff and French scientist Lebel in the same year independently argued that spatial arrangement of four groups valencies around a central carbon is tetrahedral, and if all the substituents attached to the carbon are different, the mirror image of the molecule not superimpose. अगर जो कार्बन पे जो चारों ग्रुप लगे हैं वो अलग अलग है, तो उसका अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक कार्बन। और स्टीरियो सेंटर कब बनेगा? जब वो कार्बन कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन कब होगा? जब कार्बन के ऊपर लगे हुए चारों ग्रुप सारे अलग होंगे। The asymmetry of the molecule along with no non-superimposability of mirror image is responsible for the optical activity. ये एक important line है। The asymmetry of the molecule along with non-superimposability images is responsible for optical activity in such organic compound. The symmetry and asymmetry are also observed in many day-to-day objects. जैसे कि ये देखिए ये इसका मिरर इमेज अगर उठा के आप इसके ऊपर रखेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के लिए नॉन कायरल हुआ, ये कायरल हुआ। The symmetry and asymmetry are also observed in many day-to-day objects. A sphere, cube, cone are all identical to the mirror image and can be superimposed. ये सारा दिया है उसमें कायरल के बारे में, ठीक है। As you can see very clearly, प्रोपेन देखो, ये प्रोपेन 2 ऑल है, उसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसको उठा के इसके ऊपर रखे हम तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, उसके ऊपर इम्पोज नहीं होगा, तो इसके पास कोई सिमेट्री है नहीं। डज नॉट कंटेन एन असिमेट्रिक कार्बन। लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन इसके ऊपर असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। ये सिमेट्रिक देखो, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, क्योंकि एज ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच टू टेट्राइल कार्बन आर नॉट डिफरेंट। वी रोटेट द मिरर बी, जो मिरर बी को हमने रोटेट किया तो 180 डिग्री पे, तो एंड ट्राई टू ओवरलैप द स्ट्रक्चर सी ए दी स्ट्रक्चर कंप्लीट। अगर हमने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया और इसको हमने ओवरलैप करने की कोशिश की तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब ये एक अकायरल कार्बन है, ठीक है। कभी भी जब ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिया जो कि अकायरल है, 2 मॉलिक्यूल सेम है उसमें 2 एटम्स, तो वो असिमेट्रिक कार्बन से हम बोलेंगे। उसको अगर हमने 180 डिग्री पे रोटेट करके फिर उसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाया तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसका मतलब वो अकायरल कार्बन है। ये ब्यूटेन 2 ऑल को देखो, इसे 180 डिग्री पे रोटेट करके हमने सुपर इम्पोज करवाएंगे तो ये नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक कार्बन है, असिमेट्रिक कार्बन है, तो इसे हम कायरल बोलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror image। ये आ सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। The stereoisomers related to each other, stereoisomers एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे? as non-superimposable mirror images are called enantiomers. The stereoisomers related। So our next topic is retention। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहेगा फिर और जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर रहेगा दोनों सेम रहेगा। उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम हुआ, अगर पहला वाला आर है तो सेकंड वाला आर रहेगा, ऐसे तो एस, आर एस हुआ तो उसको इन्वर्जन बोलता है। अगर सेम रहा हमारा कॉन्फ़िगरेशन तो उसे हम रिटेंशन बोलते हैं। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन असिमेट्रिक सेंटर। मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए हमारा, असिमेट्रिक सेंटर मींस कायरल कार्बन होना चाहिए ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। In general, if during a reaction no bond to the stereo center is broken, the product will have the same general configuration of groups around the stereo center as that of reactant। अगर कोई बॉन्ड टूटा ही नहीं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट की तरह सेम होगा। Such a reaction is said to proceed with the retention of the configuration। वैसा स्ट्रक्चर आगे चल के रिटेंशन दिखाता है। Consider as an example the reaction that takes place when 2-methyl butane 1-ol is heated with hydrochloric acid, concentrated hydrochloric acid। देखो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है, यहाँ पे 2-methyl butane 1-ol है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो OH हट के क्या लग जाएगा? Cl। लेकिन OH जहां से हटा उसी पोजीशन पे Cl आके लगा कि उल्टे साइड पे लगा? सेम साइड पे लगा ना। सेम साइड पे अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो उसे हम बोलेंगे रिटेंशन। It is important to note that configuration at a symmetric center in the reactant and product is same, but the sign of the optical rotation has changed in the product। देखो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट में माइनस लीवो रोटेटरी था और यहाँ प्रोडक्ट में प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन गया। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन अगर जिस साइड से हमारा OH गया उसी साइड पे हमारा न्यूक्लियोफाइल दैट इज क्लोराइड आयन आके लगा था, सेम साइड पे लगा, इसलिए यहाँ पे रिटेंशन हुआ, लेकिन उसका रोटेशन ऑप्टिकल जो रोटेशन है वो चेंज हो गया। डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, वन में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस साइन वाइल अदर में भी लीवो रोटेटरी नेगेटिव साइन। अभी इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसमाइजेशन तीनों एक साथ पढ़ते। देयर आर 3 आउटकम्स फॉर अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें 3 आउटकम हो सकता है, या तो इन्वर्जन प्रोडक्ट आएगा, या तो रिटेंशन आएगा, या तो दोनों। जब रिटेंशन इन्वर्जन साथ में रहेगा तो उसे हम रेसमाइजेशन बोलते हैं। There are 3 outcomes for a reaction at an asymmetric carbon atom when a bond directly linked to a symmetric carbon atom is broken. Consider the replacement of X by Y। देखो ये Y हट के यहाँ पे देखो जो हमारा रिएक्टेंट है ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। इसमें जो X है ये हट के क्या लग गया यहाँ पे Y।
और ये क्या लगे y, यहाँ पे y हट के x सेम साइड पे रिएक्टेंस से लगा है कि उल्टे साइड पे, यहाँ पे उल्टे साइड पे लगा है। देखो ये लेफ्ट साइड में x है, यहाँ पे राइट साइड में y लगा, तो ये रिटेंशन हुआ कि इन्वर्जन, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट हुआ। यहाँ पे देखो x हमारा लेफ्ट साइड पे था, y भी हमारा लेफ्ट साइड पे, तो a वाला जो प्रोडक्ट है हमारा रिटेंशन है और जो b वाला प्रोडक्ट है हमारा इन्वर्जन है। तो अगर a और कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें a और b दोनों बना तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेशमाइजेशन, इन्वर्जन भी बना और रिटेंशन भी बना। इफ a इज द ओनली, अगर सिर्फ a मिला तो रिटेंशन मिलेगा, अगर सिर्फ b मिला तो इन्वर्जन मिलेगा, अगर ए और बी दोनों साथ में मिला तो उसे हम रेशमाइजेशन बोलेंगे। तो 50-50 मिक्सचर, 50:50 मिक्सचर ऑफ ए एंड बी अगर मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे रेशमाइजेशन। एंड द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो रेशमाइजेशन का जो प्रोडक्ट रहेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रेशमाइजेशन का हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, रेशमाइजेशन का प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि एक अगर एस डायरेक्शन में घुमा, दूसरा आर में डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज में एक क्लॉकवाइज में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसलिए वो हमारा जो नेट प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एज वन आइसोमर विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वन अनदर, जो मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का बोला। नाउ लेट अस हैव अ फ्रेश लुक एट SN1 and SN2 mechanism by taking example of optically active alkyl halide. In case of optically active alkyl halide, the product form as a result of SN2, जो SN2 हमने पढ़ा था, SN2 में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, रिटेंशन की इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन क्यों मिलता है, कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जब वो अटैक करता है तो हमारा ओरिजिनल न्यूक्लियोफाइल वहीं पे लगा होता है, OH, जैसे समझो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है OH, यहाँ पे Br है और OH हमारा उसके अपोजिट साइड पे लगता है, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड क्या मिलता है हमें, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। और SN1 में हमें क्या मिलेगा, SN1 में हमें रेशमाइजेशन मिलता है, रेशमाइजेशन मतलब रिटेंशन इन्वर्जन दोनों। Can you think the reason why it is happens? Actually, the carbocation form in the slow step being sp2 hybridized planar achiral, ये एक important है, जो हमें कार्बोकेटाइन मिलता है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज होता है। SN1 में जो कार्बोकेटाइन मिलता है sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर अकार्यल कार्बन होता है। दैट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में भी अकम्प्लिश फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द प्लेन ऑफ द कार्बोकेटाइन, रिजल्टिंग, मतलब कि रिटेंशन, जो कार्बोकेटाइन के ऊपर जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो रिटेंशन के साइड से हो सकता है या फिर इन्वर्जन के साइड से भी हो सकता है, इसके लिए हम बोलेंगे कि वो रेशमाइजेशन है। देखो नीचे एग्जांपल्स दिया हुआ है, दिस में भी इलस्ट्रेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromobutane, 2-bromo, ये सारा एग्जांपल याद रखना है। 2-bromobutane में हमें रेशमाइजेशन मिलेगा, ब्यूटेन टू ऑल, तो 2-bromobutane SN1 दिखाएगा, SN2 SN1, इसमें रेशमाइजेशन मिलेगा। SN2 के हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा था, 2-bromo-octane। अभी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हेन अ हेलोअल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन, याद रखना ये एक ट्रिक है, कभी भी जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन आता है ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। उसमें जो बीटा हाइड्रोजन होता है, इसमें क्या होता है, अल्फा लूसेज हैलोजन, बीटा लूसेज हाइड्रोजन, ये एक ट्रिक है। अल्फा में से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, फिर दोनों एलिमिनेट होकर बीच में डबल बॉन्ड आएगा। एज अ रीजन एन अल्कीन इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट, सिंस बीटा हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व इन दिस एलिमिनेशन इट इज ऑफन कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए हम इसे बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन अल्काइन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन आइटम, यूजुअली वन अल्कीन इज फॉर्म एज अ मेजर, अगर हमारे बीटा कार्बन बहुत एक से ज्यादा हाइड्रोजन है तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, लेकिन उसमें से हमारा एक ही अल्कीन होगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा। This form part of a pattern first observed by Russian chemist Alexander Zaitsev. तो जो हमारा बीटा एलिमिनेशन है उसमें जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए एक रूल होता है, सेडजेफ रूल। which can be summarized as in dehydrohalogenation, ये पूरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। In dehydrogenation reaction, the preferred product is that alkene which has a greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom. Thus 2-bromopentane is मतलब कि ऐसा अल्कीन जो डबल बॉन्ड के जो कार्बन जुड़े हुए हैं उनके साथ ज्यादा हमारा अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, वो हमारा मोस्ट स्टेबल अल्कीन होता है। देखो ये इस रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट, एक 81% का है, एक 19% का है, तो कौन सा हमारा ज्यादा मेजर होगा। देखो इस दो कार्बन से 3 अल्काइल, इस साइड 2 अल्काइल ग्रुप, इस साइड 1 अल्काइल ग्रुप, इस कार्बन पे एक ही साइड अल्काइल ग्रुप है, तो कौन सा हमारा मेजर हुआ, ये दोनों कार्बन से अल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट मेजर हुआ अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। अब ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन।
A chemical reaction is a result of competition. It is a race that is won by the fastest runner. A collection of molecules tend to divide and large. What is the easiest for them? An alkyl halide with beta hydrogen atom when reacted with a base or nucleophile. किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेस या न्यूक्लियोफाइल. हैज टू कॉम्पिटिटिव. SN1 से जा सकता है या फिर वो SN2 से जा सकता है, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या फिर वो एलिमिनेशन के थ्रू जा सकता है. तो कौन सा रूट वो फॉलो करेगा? Which route will be taken depends upon the nature of alkyl halide, strength and size of base, nucleophile and reaction conditions. Thus, a bulkier nucleophile will prefer to act as base and abstracts a proton rather than approach to tetrahedral carbon atom, steric hindrance, and vice versa. Since similarly, primary alkyl will prefer SN2, a secondary halide SN2, और elimination depend upon the strength of base. टर्शरी के लिए SN1 यूज होगा, कार्बोकैटायन से जाएगा. देखो, अगर जो हमारा बेस है न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अगर वो बल्कि अगर बड़ा है तो वो एलिमिनेशन कर देगा, और अगर वो 1 डिग्री है 2 डिग्री है तो SN1 SN2 दिखा सकता है. पेपर पैराग्राफ में यही दिया है. अभी रिएक्शन विथ हम मेटल्स करते हैं. Most organic chlorides, bromides, and iodides react with certain metals to give compounds containing carbon metal bonds. Such compounds are known as organometallic bond. ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटल मतलब मेटालिक. जो मेटालिक मीन्स जो मेटल्स, कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड रहेगा. एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नान इन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. RMGX रिफर्ड एज ग्रिग्नान रिएजेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. कौन सा? ग्रिग्नान reagent. These reagents are obtained by the reaction of haloalkane with magnesium metal in dry ether. ये याद रखना है कि मैग्नीशियम मेटल ड्राई ईथर ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे ड्राई ईथर हमारा सॉल्वेंट है, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ग्रिग्नार रिएजेंट. ये Mg आके कार्बन और ब्रोमीन के बीच में लग जाएगा. इन ग्रिग्नार रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो बनता है वो कोवेलेंट होता है. ये आ सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में या ट्रू फॉल्स में. जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है वो आयोनिक होता है कि कोवेलेंट होता है? वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट वो हाईली पोलर होता है. विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम और कार्बन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? मेटल हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह काम करेगा और मैग्नीशियम हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह काम करेगा. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचे, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा मैग्नीशियम से. तो बॉन्ड तो हमारा कोवेलेंट है, लेकिन इसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाती है. ये याद रखना है. ग्रिग्नार रिएजेंट में कार्बन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन वो पोलर होता है. Grignard reagents are highly reactive and react with any source of proton to give hydrocarbon. अगर उसमें प्रोटॉन, ग्रिग्नार्ड रीजन हमने प्रोटॉन का सोर्स डाल दिया तो हमें वो हाइड्रोकार्बन इवन वाटर, alcohols, amines are sufficiently acidic to convert their corresponding. वाटर डाला, ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है हमारा सॉल्वेंट. वाटर डाला, अल्कोहल डाला, अमाइंस डाला, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हाइड्रोकार्बन मिल सकता है. देखो RMGX हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें वाटर डाला, वाटर हाइड्रोजन डोनर है, तो हमें मिल गया अल्केन. इट इज therefore necessary to avoid even traces of moisture from a Grignard reagent. इसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें एकदम प्योर फॉर्म में रखना है, तो हमें ध्यान रखना है कि मॉइस्चर उसके आसपास ना पाए. दिस इज वाई द रिएक्शन इज कैरिड आउट. इसके लिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है वो ड्राई ईथर में किया जाता है. ऑन द अदर हैंड दिस कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेथड फॉर कन्वर्टिंग हैलाइड्स टू हाइड्रोकार्बन. हम हैलाइड्स को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए ये एक मेथड यूज कर सकते हैं. कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज वर्ड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं. अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर. वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या यूज किया था? मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर. वुड्स रिएक्शन में क्या यूज करेंगे? सोडियम इन ड्राई ईथर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा हमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड. जो रिएक्टेंट मिलेगा उससे डबल कार्बन एटम मिलेगा. देखो यहाँ पे 1 R था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हमें 2 R मिला. ठीक है, इसमें हमेशा हमें इवन नंबर ऑफ मिलेगा क्योंकि उसका डबल ही होगा. डबल हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन का मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे हमारा हेलो अल्केन. अल्केन के सारे रिएक्शंस खत्म होते हैं. हमने क्या क्या पढ़ा, लेट्स देखते रिवाइज करते हैं. देखो हमें हेलो अल्केन स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारा क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेसिस ऑन नंबर ऑफ हेलोजन, मोनो, डाई, ट्राई. फिर जो sp2 कंटेनिंग जो कार्बन कंपाउंड होता है, जो हेलो अरीन्स, विनाइलिक हैलाइड, अराइलिक हैलाइड देखा, नॉमेनक्लेचर देखा हमने. फिर हाइड्रोकार्बन से कैसे हेलो अल्केन बनाने का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने यूज किया. हेलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकल्स स्टुअर्ट्स मेथड यूज किया था. फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में स्वीट स्मेल, कलर वगैरह. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना उसका एटॉमिक वेट होगा.
ये हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था जो आइसोमर्स होंगे बॉइलिंग पॉइंट के। देखो इसमें बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने कौन सा बताया था, ओपीएम, ऑर्थो सबसे ज्यादा होगा, फिर पैरा, फिर मेटा। मेल्टिंग पॉइंट में पॉम, पैरा का ज्यादा होगा, ऑर्थो का, फिर मेटा का। ठीक है, ये हमने फिर इसका डाइपोल मोमेंट का भी एक था चार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये हमारा कंपाउंड है, देखो ये देखो हमारा डाइपोल मोमेंट चार्ट था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज्यादा डाइपोल मिथाइल क्लोराइड का होता है, फिर मिथाइल फ्लोराइड, फिर मिथाइल ब्रोमाइड, फिर मिथाइल आयोडाइड। फिर हेलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज पढ़ा था। प्रेपरेशन ऑफ हेलो, ये हमारा प्रेपरेशन था हेलो अल्केन का। प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन का क्या था, हम हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। एफी डार्क, एफी जब डार्क यूज करेंगे तो रिंग के ऊपर हेलोजन का अटैक होगा। अगर हमने यहाँ पे यूवी लाइट यूज किया तो हमारे मिथाइल रिंग के बाहर वो हेलोजन आके अटैक करेगा। तो हमारा अमाइन से सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्या बोला था कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हमारा रिएक्टेंट होता है, सेकेंडरी नहीं, टर्शरी नहीं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हमारा रिएक्टेंट होता है। इसमें बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बनाएंगे तो हमारा अराइल हैलाइड, Cu2X2 डालेंगे, ब्रोमाइड और क्लोराइड के लिए। अगर हमें आयोडाइड ऐड करना है तो KI डाल के हम उसको शेक कर देंगे तो हमारा डायरेक्टली उसका रिएक्शन हो जाएगा। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसका डेंसिटी, फिर लाइक डिजोल्व, लाइक हेलो अल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादा डिजोल्व होता है। फिर उसका केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था हेलो अल्केन का, 3 टाइप का दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन और रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल्स, न्यूक्लियोफिलिक हमने SN1 पहले से न्यूक्लियोफाइल अटैक देखा था कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, KCN AgCN का और KNO2HNO2। KCN रहेगा तो साइनाइड नाइट्राइल या फिर साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा, और AgCN रहेगा तो आइसोनाइट्राइल बनेगा। KNO2 बनेगा तो नाइट्राइड, ONO रोनो बनता है, AgNO2 NO2 अटैच होगा, नाइट्रो अल्केन बनता है। इसे हम एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ये उसका रीजन था। फिर मैकेनिज्म ने हमें SN2 SN1 देखा था, इसका इन दोनों का डिफरेंस क्या था। SN2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स था हमारा, SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था। SN2 सिंगल स्टेप होता है, SN1 2 स्टेप होता है। SN2 न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, SN1 न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। SN2 का ऑर्डर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर टर्शरी हैलाइड। फिर SN1 का टर्शरी हैलाइड ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, क्योंकि उसमें कार्बोग्राइड मैकेनिज्म से जाते हैं। ये बेसिक्स डिफरेंट होता है SN1 और SN2 में। और हाँ, SN2 में कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता और SN1 में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। और इंटरमीडिएट में हमारा ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 5 एटम्स का बॉन्ड बनाता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा था, रिटेंशन, इन्वर्जन, कायरलिटी क्या होता है, निकोल प्रिज्म से कैसे डेक्स्ट्रो और लिवो हमने डिसाइड किया था। असिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर कायरल करते हैं। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ द मिरर इमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये एनांशियोमर का डेफिनेशन, द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रहेगा, जिसे हम एनांशियोमर बोलेंगे। रेसिन मिश्रण में लिवो और डेक्स्ट्रो दोनों होता है, 50-50%। फिर हमने पढ़ा था बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था बीटा, उसमें अल्कोहलिक KOH यूज होगा, उसमें से हाइड्रोजन, उस का बीटा से हमें हाइड्रोजन निकलता है, इसके लिए बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा सेल्ज़र रूल से बनेगा, कि सेल्ज़र रूल में क्या होता है, जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसके आजू बाजू अल्काइल ग्रुप अगर ज्यादा होगा तो मेजर प्रोडक्ट हमारा होगा। फिर SN1 SN2 हम कैसे डिसाइड करेंगे, अगर जो बेस या न्यूक्लियोफाइल हमारा रिएक्ट जो अटैकिंग रिएजेंट है बेस और न्यूक्लियोफाइल अगर वो बल्कि हुआ तो हम एलिमिनेशन करा देंगे। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री हुआ, अगर 1 डिग्री हुआ तो SN2 हो जाएगा, 2 डिग्री हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री तो SN2 हो जाएगा, अगर 3 डिग्री हुआ तो SN1 हो जाएगा, फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। रिएक्शन के साथ मेटल, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन हमने क्या पढ़ा, ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन हमने रीजन क्या सॉल्वेंट क्या यूज किया था, ड्राई था। अगर इसमें थोड़ा सा हम प्रोटॉन डोनर करने वाले कोई रीजन डाल दिए, वैसे पानी हो गया, अल्कोहल अमाइन डाल दिया तो हमारा अल्केन बन जाएगा। फिर सेकंड क्या पढ़ा था हमने, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलता है, जितना कार्बन रिएक्टेंट में होगा उससे डबल हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, और इसमें हमारा रीजन क्या था, सोडियम इन ड्राई था। फिर हमने न्यूक्लियो, फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ हेलोरीन्स। इसमें पहला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन में पहला मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। यहाँ पे हम पहला इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। हमारा हेलो अल्केन तो न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्टिव था, लेकिन हेलोरीन थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। कौन से रीजन की वजह से, पहला रीजन क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। इन हेलोरीन्स जो इलेक्ट्रॉन पैर जो होते हैं हेलोजन पे कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाते हैं, इसके लिए वो मूव होते हैं, रेजोनेंस दिखाते रहते हैं। इसके लिए जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो किसी एक जगह पर स्टेबल नहीं होते, वो घूमते रहते हैं रिंग में, इसके लिए न्यूक्लियोफाइल का जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव हो जाता है। फिर डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम C(X) बॉन्ड। जो हमारा हेलो अल्केन में जो कार्बन एटम था जिसपे हेलोजन लगा हुआ तो sp3 था, यहाँ पे जो हेलोजन लगा हुआ जो कार्बन है वो sp2 है। तो sp2 जो हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है, s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव एंड कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन
हैलोजन बॉन्ड मोर टाइटली। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, और sp3 में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। सेकंड रीजन हो गया। और sp2 का बॉन्ड शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू sp3, तो उसको बॉन्ड तोड़ने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगा न्यूक्लियोफाइल को। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। In case of हेलोअरीन, द फिनाइल कटायन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन। जो हमारा फिनाइल कटायन बनेगा, रिंग के ऊपर जो प्लस बनेगा, हमें पता है वो अनस्टेबल होता है, तो SN1 मैकेनिज्म हमारा रूल्ड आउट हो गया। क्यों रूल्ड आउट हो गया? कि SN1 मैकेनिज्म कार्बोकटायन के थ्रू जाता है। अगर कार्बोकटायन ही स्टेबल नहीं है तो SN1 मैकेनिज्म भी नहीं हो सकता। Because of the possible reason, it is less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arenes। इसलिए हमारा न्यूक्लियोफाइल कम चांसेस है कि वो अटैक करेगा हमारे अरीन रिंग पर। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेसमेंट करा के हम अपना रिएक्शन करा सकते हैं। क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएजेंट हमें सब याद रखना है। इन द टेम्परेचर 623 और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो ये क्लोरोबेंजीन, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना रिएजेंट डाला एसिडिक मीडियम में, तो हमें मिल गया फिनॉल। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया, ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देती है हेलोअरीन्स की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो हमारा रिएक्टिविटी हेलोअरीन्स का बढ़ा देता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजिशन पे लगा है तो NO से रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। क्यों? ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये बॉन्ड टूटने का चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये OH जल्दी से अटैक करेगा। यहाँ पे 2 लगे तो ये इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ पे 3 लगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट द ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। हाउएवर नो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, हाउएवर नो इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी हेलोअरीन इज ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजिशन। ये एक एक्सेप्शन है। अगर नाइट्रो ग्रुप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे है तो उसका इफेक्ट दिखेगा, अगर वो मेटा पोजिशन पे तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। ये उसका मैकेनिज्म दिया है किस तरीके से होता है। कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शोज इज इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो पैरा पोजिशन नॉट एट मेटा पोजिशन? उसका देखो रीजन दिया है। As shown, the presence of nitro group at ortho and para position withdraws the electron density from benzene ring and thus facilitates the attack of nucleophile on हेलोअरीन। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल को तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए और न्यूक्लियस लविंग होता है ना। तो द कार्बोनाइन थस फॉर्म इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, और जो कार्बोनाइन बनेगा वो रेजोनेंस से हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा। The negative charge appeared at ortho and para position with respect to halogen substitute is stabilized by NO2 group। जो ortho para position पे नेगेटिव चार्ज होगा वो NO2 ग्रुप को स्टेबलाइज कर देगा। और मेटा नाइट्रोबेंजीन के केस में none of the resonating structure bears a negative charge on carbon bearing NO2, मतलब कि उसमें जो नेगेटिव चार्ज वो मेटा पोजिशन पे आता ही नहीं, तो स्टेबलाइज होगा ही नहीं। तो मैं इसके लिए therefore the presence of nitro group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 group in meta position। देखो इसका इन शॉर्ट क्या बोला है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन अगर नाइट्रो ग्रुप रहेगा तो जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस दिखा के ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आएगा तो स्टेबलाइज कर देगा उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन जब रेजोनेंस होता है तो नेगेटिव चार्ज मेटा पोजिशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा रहेगा तो उस पर नहीं आता, तो नहीं आया तो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इसके लिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। सेकेंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे दिखाते हैं। हेलोअरीन्स अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग सच एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फिनेशन। ये सारे याद रखना है कि ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन कौन से? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये सब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पूछ सकते हैं MCQ में इसमें इनमें से कौन से इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें से कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक कौन कौन से है? हेलोजिनेशन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो हेलोजिनेशन हुआ, नाइट्रेशन हुआ, सल्फोनेशन हुआ, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हुआ। ठीक है, हेलोजन आइटम बिसाइड्स बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग। हेलोजन जो एटम्स होता है वो एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग, वो हमारा डीएक्टिवेटिंग होता है। वो ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग होता है पर वो ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग होता है। देयरफॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम। अगर हेलोजन एटम लगा है तो वो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट दिखाएगा और ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन कराएगा। द ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन एटम कैन बी इजीली अंडरस्टूड। अगर हम रेजोनेंस देखें हेलोबेंजीन पे, देखो नेगेटिव चार्ज हमारा ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ कराएगा? ऑर्थो और पैरा पे। ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस कहाँ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे और मेटा पोजिशन एज कम्पेयर टू मेटा पोजिशन। फर्दर द हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ द -I इफेक्ट हैज सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग।
जो हैलोजन एटम माइनस आई इफेक्ट की वजह से उसके पास थोड़ी टेंडेंसी होती है कि बेंजीन रिंग से अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सके. एज अ रिजल्ट द रिंग गेट समवॉट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन एंड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोजन अकर स्लोली. देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि अगर हैलोजन लगा रहेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होगा कि स्लोअर होगा. क्यों? क्योंकि हैलोजन थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा रिंग से, इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा एंड रिक्वायर्स मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज ऑफ बेंजीन. बेंजीन हमारा इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन अगर उसमें हमने हैलोजन लगा दिया तो थोड़ा डीएक्टिवेटिंग नेचर दिखाएगा, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा. इसके लिए हमारा थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो हो जाता है, इसलिए हमें उसमें ड्रास्टिक कंडीशन लगाना पड़ेगा, तब जाके वो दिखाएगा. देखो यहाँ पे हमने अनहाइड्रस FeCl3 यूज किया है क्लोरीनेशन करने के लिए. नाइट्रेशन हमने कॉन्क H2SO4 HNO3 यूज किया है. नाइट्रेशन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हमारा पैरा मेजर होगा, क्लोरोबेंजीन में पैरा मेजर है. सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया है, ऑर्थो पैरा यहाँ पे भी पैरा मेजर है. यहाँ पे याद रखना SO3H लगता है, SO3 नहीं SO3H लगता है. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट फर्स्ट वाला ये अल्काइलेशन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है. अनहाइड्रस इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पैरा मेजर हुआ, यहाँ पे भी असाइल ग्रुप लगा, ऑर्थो पैरा मेजर हो गया. Although chlorine is electron withdrawing group, yet it is orthopara directing in electrophilic aromatic substitution reaction. Why? अगर क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग है तो उसको मेटा होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है. क्यों? क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस. वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचता है और रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है. थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकटायन फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका डिस्टेबलाइज की स्टेबिलिटी कम कर देता है. किसकी वजह से? इंडक्टिव इफेक्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो डिस्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट कार्बोकटायन को. इसलिए अटैक हमारा कहाँ पे होगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे. रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट कार्बोकटायन को. डिस्टेबलाइज कौन सा इफेक्ट करता है? इंडक्टिव इफेक्ट. और स्टेबलाइज कौन करता है? रेजोनेंस इफेक्ट. Through resonance, the halogen tends to stabilize the carbocation, and the effect is more pronounced as resonance effect ज्यादा strong होता है effective effects, inductive effects. इसके लिए resonance predominant करेगा. और resonance effect कहाँ दिखेगा? हमारा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे. इसके लिए जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे होगा. The inductive effect is stronger than resonance and causes net electron withdrawal and thus causes net deactivation. The resonance effect tends to oppose the inductive effect for the attack of orthopara position and hence makes the deactivation less orthopara position. Reactivity is thus controlled by stronger inductive effect and orientation is controlled by resonance effect. देखो इसमें दिया है कि inductive effect resonance से ज्यादा strong है और resonance effect inductive effect को oppose करेगा, इसलिए इसको थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा. देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन दिया है, रेजोनेंस इज थस कंट्रोल बाय रिएक्टिविटी. कौन कंट्रोल करेगा? स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट. और ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करेगा? रेजोनेंस इफेक्ट. रिएक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा? स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट. और ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करेगा? रेजोनेंस इफेक्ट. ये इंपॉर्टेंट लाइन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज में. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? इंडक्टिव इफेक्ट. और ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करता है? रेजोनेंस इफेक्ट. अभी मेटल के साथ रिएक्शन करने में वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन हमने देखा था वो सिर्फ अल्केन का हुआ था, अल्केन अल्केन के बीच में हाइड्रोकार्बन. इसमें रिंग और अल्केन रहेगा तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन. देखो इसमें भी यानी सोडियम ट्राइथर यूज हुआ और ये एक्स हट के यहाँ पे आर लग जाएगा. फिटिंग रिएक्शन रिंग के बीच में होगा. देखो ये डाइफिनाइल बन गया. Which alkyl light from the following price would you expect more rapidly by SN2 mechanism? कौन दिखाता है सबसे ज्यादा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री. ये दोनों में ये 1 डिग्री तो SN2 ये ज्यादा अच्छे से दिखाएगा. ये दोनों में 3 डिग्री 2 डिग्री तो SN2 ये ज्यादा दिखाएगा. ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, उसके बाजू वाला कार्बन ये 2 डिग्री, उसके बाजू वाला कार्बन ये भी 1 डिग्री है, तो ये SN2 दिखाएगा. इसमें SN1 पता लगाना है कौन ज्यादा फास्ट हो जाएगा. तो SN1 का ऑर्डर क्या था? एक्टिविटी का सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो ये हमारा है 3 डिग्री, तो ये दिखाएगा. ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो हमारा ये दिखाएगा. इसमें हमें बताना क्या बनेगा. यहाँ पे रिंग के बीच में Mg लग जाएगा तो रिंग MgBr बन जाएगा. वाटर डाल देंगे तो MgBr निकल के यहाँ पे अल्केन बन जाएगा, तो यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. इसमें Mg बीच में आ जाएगा, RMgBr बनेगा. वाटर डाल देंगे तो यहाँ पे अल्केन बन जाएगा. देखो ये हमारा रिएक्टेंट, इसमें Mg डालेंगे तो RMgBr, यहाँ पे RH, यहाँ पे अल्केन बनेगा. तो हमारा यहाँ पे R क्या हो सकता है? जो हमारा प्रोडक्ट उसको बीच में से हम, क्योंकि हमारा डबल होता है ना वुड्स रिएक्शन, तो उसको हाफ कर देंगे, हमारा R हो जाएगा. 1 2 3 4, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया. अभी पॉली हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, ठीक है. बस खत्म होने आया एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 पेज और. पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 हेलोजन एटम आर यूजुअली रिफर्ड एज पॉलीहेलोजन. हमने पढ़ा था मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में. मैनी ऑफ इनके यूजेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे. मैनी ऑफ दिस कंपाउंड्स आर यूजफुल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. सम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स आर डिस्क्राइब. देखो पहला कंपाउंड क्या दिया है? ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है.
डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथिलीन क्लोराइड भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम। डाइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्या है? मिथिलीन क्लोराइड। डाइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्या है? मिथाइलिन क्लोराइड। डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज एज सॉल्वेंट एंड अ पेंट रिमूवर। किसमें यूज होता है? एज अ सॉल्वेंट एंड अ पेंट रिमूवर एंड एज अ प्रोपेलेंट इन एरियोजल। एरियोजल में भी यूज होता है एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। इट इज ऑल्सो यूज एज मेटल क्लीनिंग फिनिशिंग सॉल्वेंट। मिथिलीन क्लोराइड या फिर डाइक्लोरोमीथेन हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन पे कैसे इफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। एक्सपोजर टू लोअर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली impaired hearing and vision. Higher levels of methylene chloride in air causes dizziness, nausea, tingling, numbness in the fingers and toes. अगर लोअर लेवल पे रहेगा तो उसका हियरिंग और विजन पे इफेक्ट करेगा। अगर हाई लेवल पे रहेगा तो नॉसिया, डिजीनेस, टिंगलिंग, नमनेस इन फिंगर एंड टोस में हो जाएगा। इन ह्यूमंस डायरेक्ट अगर स्किन कॉन्टेक्ट हुआ मिथिलीन क्लोराइड से तो इंटेंस बर्निंग, माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अगर आइज हुआ तो कॉर्निया को भी बर्न कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या था? डाइक्लोरोमीथेन शॉर्ट में बोले तो पेंट रिमूवर से सॉल्वेंट यूज होता है, एरियोजल यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स में यूज होता है, क्लीनिंग में मेटल क्लीनिंग फिनिशिंग सॉल्वेंट यूज होता है। अगर हमने इसका ज्यादा इफेक्ट ह्यूमन पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। अगर कम अमाउंट में एक्सपोजर हुआ तो हियरिंग विजन पे इफेक्ट करेगा। ज्यादा अमाउंट में एक्सपोजर हुआ तो नमनेस, टिंगलिंग, डिजीनेस सब होगा। और स्किन में कॉन्टेक्ट आया तो इंटेंस बर्निंग हो जाएगा, माइल्ड रेडनेस हो जाएगा स्किन का। अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ आइज के साथ तो कॉर्निया पे बर्न होगा। ट्राइक्लोरोमीथेन हमारा सेकंड कंपाउंड। ट्राइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म। केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, अल्कलॉइड्स, आयोडीन्स एंड अदर सब्सटेंस। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन। सबसे ज्यादा यूज क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है। क्लोरोफॉर्म का मेजर यूज कहाँ यूज होता है आज? फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22। फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22। इट वॉज वंस यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर। तो हमने एनेस्थेटिक को किससे रिप्लेस किया? क्लोरोफॉर्म से रिप्लेस किया, ईथर के साथ। As might be expected from its use as an anesthetic, inhaling chloroform vapors depresses the central nervous system. Breathing about 900 parts of chloroform per million parts of air for a short time can cause dizziness, fatigue, and headache. Chronic chloroform exposure may cause damage to the liver, where chloroform is metabolized to phosgene. Chloroform किसमें मेटाबोलाइज हो जाता है? phosgene में, जो कि पॉइजनस होता है। And to the kidneys, and some people develop sores when the skin is immersed in chloroform. Chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light to extremely poisonous gas. उस गैस का नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। अगर क्लोरोफॉर्म को हमने एयर से एक्सपोज किया तो वो ऑक्सीजन लाइट के प्रेजेंस में वो कार्बोनिल क्लोराइड बना देगा, जिसको हम फॉस्जीन भी बोलते हैं। तो फॉस्जीन का दूसरा नाम क्या हो गया? कार्बोनिल क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम क्या हो गया? ट्राइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का दूसरा नाम क्या हो गया? मिथिलीन क्लोराइड। इससे मिथिलीन क्लोराइड से कुछ याद आया होगा? अल्काइलिडीन, अल्कालाइडीन और अल्किलीडीन जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, ये विसिनल की जेमिनल है। ये हमारा विसिनल है। देखो स्टार्टिंग में हमने दिया था, तुमको दिखाती हूँ। हमने कहाँ लिखा था? देखो यहाँ नोमेनक्लेचर में कहीं था। हाँ, the dialkyl having the same type of halogen atoms, alkylidine और alkyline dihalide। अगर विसिनल हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्काइलिडीन। और अगर जेमिनल हुआ तो हम क्या बोलेंगे? एक मिनट, इन कॉमन नेम से जेमिनल हुआ तो अल्काइलिडीन बोलेंगे कब? जब जेमिनल होगा। और अगर विसिनल हुआ तो अल्काइलिन बोलेंगे। जेमिनल हुआ तो अल्काइलिडीन और विसिनल हुआ तो अल्काइलिन। अल्काइलिन तो हमारे यहाँ पे मिथाइलिन क्लोराइड है, मतलब वो जेमिनल है कि विसिनल है? विसिनल है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने यूज किया है मिथाइलिन क्लोराइड, तो इसमें जो क्लोरीन है वो जेमिनल पे लगा हुआ है कि विसिनल पे? विसिनल पे लगा हुआ है। जेमिनल पे रहेगा तो अल्काइलिडीन और विसिनल पे अल्काइलिन। देखो ये रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉस्जीन का। फॉस्जीन का दूसरा नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बनाएगा COCl2, जो कार्बोनिल क्लोराइड है, जिसका दूसरा नाम फॉस्जीन है। अभी पढ़ेंगे ट्राई आयोडोमीथेन या फिर आयोडोफॉर्म बोलेंगे। क्लोरोफॉर्म में ट्राई क्लोरोमीथेन था, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में ट्राई आयोडोमीथेन। इट वॉज यूज earlier as antiseptic, but the antiseptic properties are due to the liberation of free iodine. ये important है, जो antiseptic property था due to the liberation of free iodine and not due to the iodoform itself. iodoform जो था उसकी वजह से नहीं, जो free iodine release होता है उसकी वजह से उसका antiseptic property था। Due to its objectionable smell, it has been replaced by other formulation containing iodine. अभी tetrachloromethane या फिर carbon tetrachloride it is produced in large quantities for use in the manufacture of refrigerants and propellants for aerosol cans.
प्रोपेलेंट्स ऑफ एरोसोल के लिए एक और यूज हमने यूज किया था, क्या यूज किया था, कौन सा रिएजेंट, डाइक्लोरोमीथेन। और रेफ्रिजरेंट के लिए क्या यूज किया था, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म। तो टेट्राक्लोराइड दोनों के लिए यूज होता है, रेफ्रिजरेंट के लिए भी यूज होता है, प्रोपेलेंट के लिए भी यूज होता है फॉर एरोसोल कैन। इट इज आल्सो यूजेस फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर केमिकल, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट यूज। Until the mid 1960s, it was also widely used as cleaning fluid both in industry and as a degreasing agent and in the home as a spot remover and as fire extinguisher. ये एक important है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह क्या यूज होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन कैन बी यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है, करेक्ट है। टेट्राक्लोरोमीथेन कैन बी यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, tetrachloromethane can be used as fire extinguisher. There is some evidence that exposure to carbon tetrachloride causes liver cancer in humans. Most common effect है dizziness, lightheadedness, nausea, vomiting, permanent damage to nerve cell. In several cases में, severe cases में क्या हो सकता है, rapidly stupor, coma, unconscious या फिर death हो सकता है. Exposure to CCl4 can make the heartbeat irregularly or stop. The chemical may irritate the eyes on contact. When carbon tetrachloride is released into the air, it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer. Ozone layer को deplete भी कर सकता है. Depletion of the ozone layer is believed to increase the human exposure to UV rays, leading to skin cancer, eye disease and disorder, and possible disruption of the immune system. अभी फ्रियॉन्स, ये एक important compound है फ्रियॉन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन, अभी फ्रियॉन्स हमने कहाँ पढ़ा था, देखो यहाँ पे पढ़ा था, ट्राइक्लोरोमीथेन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन। और फ्रियॉन फ्लोरीन का कंपाउंड है, तो हमने फ्लोरीन के लिए कौन सा रिएक्शन पढ़ा था, स्वार्ट्ज रिएक्शन, SbF3, AgF2, CO2F2, COF2, AgTF2, हमने पढ़ा था ना, ये रिएजेंट सारी यूज होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन में। These are extremely stable, unreactive, non-toxic, non-corrosive, easily liquefiable gas. Freon 12, देखो यहाँ पे Freon 12, CCl2F2, देखो फ्रियॉन का फॉर्मूला दिया, CCl2F2, Freon 12, CCl2F2 is one of the most common freons in the industrial use. मैन्युफैक्चर कौन से, किससे होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन हमने ऊपर देखा, टेट्राक्लोरोमीथेन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट। तो टेट्राक्लोरोमीथेन में हम सॉल्ट रिएक्शन कराएंगे तो हमें 2 क्लोरीन रिप्लेस होके 2 फ्लोरीन लग जाएगा, तो फ्रियॉन बन जाएगा। These are usually produced from aerosol propellant, देखो यहाँ पे भी aerosol propellant आया, refrigeration and air conditioning purposes. By 1974, total freon production in the world was about 2 billion pounds annually. कितना था, 2 billion pounds annually. Most freon, even that used as refrigeration, eventually makes its way into the atmosphere where it diffuses unchanged into the stratosphere. In stratosphere, freon is able to initiate, वहाँ पे ozone layer depletion करा सकता है वो, radical, कौन सा रिएक्शन करा के, initiate radical chain reaction. P-peak डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT, जो कॉमनली हमने सुना रहेगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT द फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ये आ सकता क्वेश्चन, फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड क्या है, DDT। फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड क्या है, DDT। पेस्टिसाइड नहीं, इंसेक्टिसाइड है, ये पेस्ट को नहीं इंसेक्ट्स को मारता है। Was originally prepared in 1873, but it was not until 1939 that Paul Muller of Gigi Pharmaceuticals in Switzerland discovered the effectiveness of DDT as insecticide. Paul Muller was awarded the Nobel Prize in Medicine and Physiology in 1948 for this discovery. The use of DDT increased enormously on a worldwide basis after World War II, primarily because of the effectiveness against the mosquito that spreads malaria and lice that cause typhus. However, problems related to extensive use of DDT began to appear in the late 1940s. Many species of insects developed resistance to DDT, and it was also discovered to have a high toxicity towards the fish. The chemical stability of DDT and its fat solubility compounded the problem. DDT is not metabolized very rapidly by animals. Instead, it is deposited and stored in the fatty tissue. Animals इसको metabolize नहीं कर पाती है, उनके body में ऐसा fatty tissue में store हो जाता है. If ingestion continue हुआ at a steady rate, DDT builds up within the animal over time. The use of DDT was banned in United States in 1973, although it is still used in some parts of the. ये एक बहुत ही ज़्यादा important structure है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लेना, ये इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू।